In 1925, the Gorkha Military Inter-College, Dehradun started. Today, this 95-year-old heritage school has been served an eviction notice. This campaign is an appeal to all people who have passed out from its hallowed grounds or seen its contribution to India's nation building to come together in solidarity to save the school from being consigned to the pages of history forever. Come, let's save a heritage. सुन्नुहोस् गोर्खालीमा रेडियो घमासाया मीठा मीठा धुनहरू सुन्नुहोस् आफ्नै भाषामा घमासाया संभवहरूको अनन्त यात्रा, the Gorkha Military Inter-College. धेरै छात्रहरूले आर्मी जोइन गरियो, अन्त अफिसर्स अनि जेसीओस भएर उभियो। लेफ्टिनेन्ट जनरल राम सिंह प्रधान जनरल अफिसर कमान्डिङ मध्य भारत भएर उभियो। अन्त अरू नामी अनि प्रमुख अफिसर्स हुनुहुन्छ मेजर जनरल एसके आनन्द, मेजर जनरल उमेश के गुरुङ, अन्त नेपाल आर्मीबाट ब्रिगेडियर जनरल देव बहादुर घले। लेफ्टिनेन्ट जनरल राम सिंह प्रधान चित्र बहादुर गुरुङ पनि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट पढेको हुन्। अन्त लेफ्टिनेन्ट जनरल नेपाली आर्मीको र्याङ्कमा उठ्नुभयो र भाइस चिफ बन्नुभएको चित्र बहादुर गुरुङ पनि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट नै पढ्नु भएको हो। I have been a student of Gorkha Military Inter College, Dehradun for 5 years, that is from 1963 to 1968. I passed out from this school after having done high school in first division. These were my very good formative 5 years that I spent in the school. I remember this school was a very large school of more than 2,000 students of all hues, that is boys and girls. The atmosphere was always charged with energy, happiness and bonhomie. We all participated in various activities of the school, be it education, extracurricular activities or the sporting field. The school had its excellent name in the sporting activity, particularly the footballing and boxing. The school had excellent teaching faculty which always made sure that the students were guided and mentored for the future. And I am happy to note that these were some of the excellent qualities of competitiveness and excellence in education that has stood me in good stead in the later life. One teacher that I would like to fondly remember is Mr. Obi Saxena, who was my English teacher, who was mainly responsible for guiding me and mentoring me, and his guidance has stood me in good stead in later professional life. The other aspect that I want to recollect is the senior students, namely Shyam Thapa and Amar Thapa Dai, who were excellent footballers and brought good name to the school as also to the country. Another mention I want to make is C.B. Gurung, who joined Nepal Army and retired as a Lieutenant General and Vice Chief of the Army Staff. My years in Gorkha Military Inter College, Dehradun was an excellent one, and I have very fond memories of being an ex-student of this institution. For the city of Dehradun, this college was synonymous with the talented and brave students who served the nation with pride, and hopefully this legacy will continue in future too. सेनामा भर्ती हुनु मात्रै क्यारियरको चोइस र चयन थिएन। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको विद्यार्थीहरूले चयन गर्ने कति विद्यार्थीहरूले कम्ती हिँडेका बाटोहरू पनि रोजियो। फिल्म निर्माता चेतन कार्की नेपालको प्रसिद्ध लेखक अन्त फिल्म निर्माता हो।
उहाँ यही गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट पढेको हो। अन्त उहाँको परिवारमा नै पढ्नु जान्छ तुल बहादुर कार्की। उहाँ चाहिँ पनि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट नै पढेको हो। आज ब्याङ्क म्यानेजर हुनुहुन्छ उहाँ। मैले जुलाई 1969 मा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजमा 9वीं कक्षामा एडमिसन लिए थिएँ। हाम्रो टाइममा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजमा एडमिसन पाउन बहुत ही गौरवको कुरा थियो। कारण थियो स्कुलको एजुकेसन स्ट्यान्डर्ड र खेलकुदमा अग्रणी। यहाँबाट पढेर निस्केका छात्र छात्राहरू त्यस समयबाट सुरु भएको आजसम्म जो छ दुनियाँमा छाइराखेछन्। यस्तै गरी हाम्रो फुटबल टिम जुनियर सुबर्तो कपमा टपमा रहन्थ्यो र विनर रह्यो। र यहाँबाट निस्केका खेलाडीहरू डिफ्रेन्ट क्लबमा जोइन गरेर इन्टरनेसनल लेभलसम्म चम्के। अभिवादन। म सुरेश आले मगर, नेपालको गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्ला निवासी, हाल काठमाडौँ बसोबास। म संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद नेपालको पूर्व माननीय सदस्य, देहरादून स्थित गोर्खा मिलिट्री स्कुलको 1969 हाई स्कुल ब्याच। मेरा सहपाठीहरूमा भारतीय सेनाबाट रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल सुरेन्द्र सिंह मिनास, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कम्युनिस्ट फरेस्ट्रीका विद्वान डाक्टर एम मल्ल, जसले यूके को अक्सफोर्ड रेडिङ युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका थिए भने अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका छन्। नेपालको ख्याति प्राप्त शिक्षाविद गीता छेत्री, नेपालको राफ्टिङ कम्पनीका प्रोप्राइटर, हाल न्यूयोर्क युएसए स्थायी बसोबास चित्रबहादुर गुरुङ आदि हुन्। यो विद्यालय भारतीय गोर्खा सैनिकहरूको एकता, वीरता र प्रतिनिधित्वको रूपमा गोर्खा स्कुल देहरादूनमा स्थापना गरिएको थियो। यो स्कुल ती भारतीय सैनिकहरूको एउटा ऐतिहासिक धरोहर र सम्पदाको रूपमा रहेको छ। वास्तवमा भन्यो भने त्यति मात्र होइन, यो विद्यालय सम्पूर्ण देहरादून र भारतकै पनि एउटा ऐतिहासिक र धेरै महत्वपूर्ण सम्पदा र धरोहरको रूपमा रहेको छ। यस विद्यालयले लाखौं विद्यार्थीहरूलाई हुर्काएको छ, शिक्षित बनाएको छ र उत्पादन गरेको छ। ती विद्यार्थीहरू जो दिवंगत भए, ती दिवंगत भइसके, जो जीवित छन्, तिनीहरू आफ्नो देश र समाजमा एउटा सम्मानित नागरिकको रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका छन्। विशेष गरेर त्यहाँका विद्यार्थीहरूले खेलकुद, राजनीति, सेना, समाजसेवा आदिमा ख्याति कमाएका छन्, गौरव कमाएका छन्। तिनीहरूमध्ये एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त फुटबल खेलाडी श्याम थापा हुन्। त्यसै गरी त्यस विद्यालयका उत्पादनहरू नेपालमा माननीय मन्त्री, मान्य सदस्यहरू भइसकेका छन् भने नेपाली सेनामा लेफ्टिनेन्ट जनरलबाट अवकाश प्राप्त चित्रबहादुर गुरुङ लगायतका रहेका छन्। यो विद्यालय मैले सुने एउटा दुःखको खबर आजभोलि बन्द हुन गइरहेको छ। यसलाई बन्द गर्ने हल्ला चलेको छ। यस्तो एउटा ऐतिहासिक धरोहर र सम्पदाको रूपमा रहेको विद्यालय कुनै पनि हालतमा बन्द हुनु हुँदैन। यसका त्यस्ता केही समस्याहरू छन् भने त्यसलाई समाधान गरिनु पर्दछ। त्यस्ता बाधा अडचनहरू छन् भने त्यसलाई फुकाइनु पर्दछ। म आज यस घडीमा यस विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, शुभचिन्तकहरू, हितैषीहरू र सहयोगीहरूलाई आर्थिक, नैतिक, भौतिक हर प्रकारले सहयोग गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो तर्फबाट पनि जे जस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, देहरादूनको गोर्खा मिलिट्री स्कुल कायम रहनु पर्दछ। यसले निरन्तरता पाउनु पर्दछ। यो जीवित रहनु पर्दछ। यो कुनै पनि हालतमा बन्द हुनु हुँदैन। यसको इतिहास त्यत्तिकै मर्न हुँदैन। देहरादून के गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज पिछले कुछ समय से संकट से गुजर रही है और स्वाभाविक है कि मैं एक एक्स स्टूडेंट के नाते इससे वरीड हूँ। सेव गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज कैंपेन जो चल रही है
उसी के तहत सहभागिता जताने के लिए मैं आपसे कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ। 1956 में मैंने गोरखा मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करके 1960 में हाई स्कूल पास किया था। हमारे तत्कालीन प्रिंसिपल श्री दीनदयाल सिंह रावत सर, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वभाव था, वेरी वेरी काइंड हार्टेड। हमारे और टीचर्स वे भी हमें उतना ही प्यार करते थे। उन्होंने हम स्टूडेंट्स को अपने ही बच्चों की तरह न सिर्फ पढ़ाई में मदद किया, साथ साथ में हमारे चरित्र निर्माण में भी उन्होंने हमें गाइडेंस दिया। और मुझे लगता है कि उन्हीं के कंट्रीब्यूशंस के कारण हमारे बहुत से साथी अपने जीवन में सफल रहे और हम उनके आभारी हैं। मुझे लगता है कि गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज न सिर्फ देहरादून और उत्तराखंड की धरोहर है, बल्कि यह इस क्षेत्र की एक लैंडमार्क और एक हिस्ट्री भी है। डियर मैडम्स, डियर सर्स, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस सरस्वती के मंदिर को बचा कर रखिए और गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाकर आप भी पुण्य कमा सकते हैं। हो सके तो इसको एक हेरिटेज साइट के रूप में विकास करें, क्योंकि इसके बिना देहरादून और उत्तराखंड का इतिहास भी अधूरा रह जाएगा। और मैले जो है त्यही गोर्खा मिलिट्रीदेखि नै शिक्षा पनि प्राप्त गरेको हो। 1959 में म 6 क्लास में त्यहाँ आएँ अनि 1963 में 63 में त्यहाँदेखि फेरि म अगाडिको शिक्षाको लागि फेरि म बाहिर गएँ अनि वहाँदेखि फेरि मैले टिचर्स ट्रेनिङ गरेँ। टिचर्स ट्रेनिङ गरेर फेरि म यही स्कुलमा गोर्खा मिलिट्रीमा जो छ अध्यापिकाको रूपमा फेरि मैले जोइन गरेँ र यहाँ 40 वर्षसम्म मैले यो स्कुलमा अध्यापन कार्य गरेर 2008 में म प्रवक्ता पदमा रिटायर भएँ। र मलाई यो स्कुलको प्रति विशेष लगाव छ। मलाई जो छ किनभने मेरो धेरै समय, मेरो पुरा जीवन जो छ, जीवन भनौँ पुरै जीवन जो छ मेरो यही स्कुलमै समर्पित भयो। पहिला पढेँ 59 देखि 63 सम्म, फेरि उसको 5 सालको लागि मात्रै 3-4 सालको लागि बाहिर गएर फेरि म वहीँ शिक्षा प्राप्त गर्न आएँ, शिक्षा दिनुको लागि आएँ र 40 वर्षसम्म भन्नु पर्यो पुरै मेरो जीवन जो छ यही स्कुलकोमा बित्यो। त म त यो स्कुलकोलाई चाहन्छु कि स्कुल लगाउ छ मलाई अगाडि उन्नति गर्दै रहोस्। एउटा समय थियो जब यो स्कुलमा बच्चाहरू जो यति बच्चाहरू पढ्ने थिए, कौलागढदेखि भगवान सुकुरसम्म बच्चाहरू जो यहाँ शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि आन्थे। एउटा क्लासमा 6 क्लास जस्तो भनौँ, एउटा क्लासमा 7 सेक्सन अनि एउटा सेक्सनमा 60 बच्चाहरू थिए। धेरै बच्चाहरू हुनुको कारण स्कुल 2 पारीमा 2 शिफ्टमा चल्ने थियो। एक शिफ्टमा 1500 जति बच्चाहरू, 1500 भन्दा पनि धेरै होला, 1500 बच्चाहरू जो छ 2 शिफ्टमा 1500 बच्चा यसरी शिक्षा प्राप्त गर्ने थिए यहाँ र जो है। और यहाँदेखि पढेर बच्चाहरू राम्रो पोस्टमा गए, राम्रो पदमा गए। धेरै जसो आर्मी अफसरहरू भए अनि सिभिलमा पनि, सिभिल पदमा पनि राम्रो पोस्टमा पुगे बच्चाहरू। अरू शिक्षाको अलावा खेलमा पनि श्याम थापा, अमर बहादुर, वीर बहादुर, यिनीहरू सबै जो फुटबल खेलाडीहरू, यिनीहरू जो छ इन्टरनेसनल फुटबल खेलाडीहरू यही स्कुलको देन। तो यो जो छ हाम्रो स्कुल जो चाहिँ यो क्षेत्रमा यो एउटै स्कुल थियो र सबै जो है यही शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि आए। तो म चाहन्छु कि यो स्कुलले जो चाहिँ निरन्तर अझै पनि जस प्रकारले पहिला थियो यसै प्रकारले जो है अगाडि पनि उन्नति गर्दै रहोस्, मेरो त यही कामना छ। हमारे जिंदगी के सबसे अहम समय हम स्कूलों में बिताते हैं। बहुत यादें जुड़ी हुई होती है हमारे स्कूल के साथ। इसीलिए हम सभी के लिए, हम सभी की जिंदगी में स्कूल बहुत मायने रखती है। दून घाटी के छावनी क्षेत्र में स्वच्छ और शांत
वादियों में स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज सिर्फ एक विद्यालय ही नहीं बल्कि अपने में एक इतिहास समेटे हुए सबसे पुराने स्कूलों में से एक, जमाने में अव्वल स्कूलों में से एक। यह स्कूल देहरादून का, उत्तराखंड का अगर धरोहर है कहें तो गलत न होगा। मैंने 1960 में क्लास 6 में इस स्कूल में भर्ना लिया था और उसके बाद क्लास 6 से इंटरमीडिएट तक का शिक्षा मैंने इसी स्कूल से प्राप्त किया। उस वक्त हमारे प्रिंसिपल जी.एस. थापा सर हुआ करते थे, बहुत ही सख्त मिजाज और अनुशासन के मामले में बहुत ही सख्त, लेकिन दिल के बहुत नरम थे। मैं अपने पूज्य गुरुजनों को याद करना चाहूँगा। आनंद गुरुजी, भंडारी गुरुजी, ए.पी. शर्मा गुरुजी, शास्त्री गुरुजी, शांति गुरुजी, गोविंद गुरुजी और बड़ी मैडम, छोटी मैडम और पतली मैडम। इन्हीं लोगों के बदौलत आज हम यहाँ हैं। अपने साथ बहुत दुख हुआ जानकर कि अभी हमारा स्कूल, हमारा गोरखा स्कूल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत है और इस स्कूल परिचालन में बहुत सी बाधाएं आ रही है। ये सुनकर हमको बहुत दुख हुआ और हमें भी और पूरे देहरादून वासियों को भी ये दुख का विषय है। इसीलिए मैं सारा दून वासियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और उन सभी संबंधित निकायों को और व्यक्तियों को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज इस धरोहर को बचा के रखिए, इस ऐतिहासिक स्कूल को बचा के रखिए, इसको विलीन होने मत दीजिए। मैं डॉक्टर कुणाल कुमार दास, मैं एक इसरो का साइंटिस्ट रहा हूं और मैंने 40 साल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। ऐसा स्कूल कहीं भी नहीं देखा जैसा गोरखा मिलिट्री स्कूल है। इस स्कूल में वो चीज था जो कहीं भी नहीं मेरे को दिखा, जैसे कि एक देशभक्ति था हम लोगों में, जो हम लोगों में देशभक्ति इस स्कूल ने दिया। हम लोगों में एक काम करने का शक्ति दिया और हम लोगों में एक आगे बढ़ने का एक जुनून जो दिया, वो गोरखा मिलिट्री स्कूल ने दिया। और उसका श्रेय हमेशा हमारे टीचर्स को जाते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे। हमारे जो प्रिंसिपल थापा सर थे, जी.एस. थापा, वो बहुत ही अच्छे टीचर थे। वाइस प्रिंसिपल हमारे भंडारी सर थे, वो भी बहुत अच्छे थे। संस्कृत के हमारे टीचर थे शास्त्री सर, और हमारे मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर हुआ करते थे गौर सर, और बहुत सारे टीचर्स जो उन लोगों ने हम लोग को बहुत कुछ दिया, हमको सिखाया। मेरे साथ और मेरे सीनियर्स बहुत ही लायक थे। अब मुझे अभी भी याद है कि फुटबॉल खेल में शायद देहरादून तो क्या भारतवर्ष में ऐसा कोई टीम नहीं था जो गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के टीम हुआ करते थे। इस टीम के जो खिलाड़ी थे ज्यादातर मेरे को अभी भी याद है थमान हॉस्टल और कन्हैया हॉस्टल से आते थे, और उसमें बहुत नामी खिलाड़ी थे जो बाद में देश के लिए बहुत नाम किया और एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स भी रहे, जिसमें श्याम थापा भी थे और बहुत और लोग भी थे, रंजीत थापा थे और भी लोग थे। तो मैंने उनसे क्या सीखा? मैंने उन लोगों से फुटबॉल सीखा, और मेरे जो टीचर थे, जो पीटी टीचर थे, वो बहुत अच्छे टीचर थे। उन्होंने हम लोग को बॉक्सिंग भी सिखाया था। तो बॉक्सिंग में भी जो नेशनल प्लेयर ये स्कूल ने दिए हैं, वो रियली बहुत ही अच्छा दिए हैं उन्होंने। और मेरे को याद है कि हमारे स्कूल जब पहले बार सुब्रतो कप जीत के आया था, हम लोग जो फर्स्ट टाइम फुटबॉल कप जीत के आए थे, तो हमारे प्रिंसिपल ने हम पूरे स्टूडेंट को लेके देहरादून के रेलवे स्टेशन में ले गए थे। वहां पर एक बहुत बड़ा
एक बग्गी था जिसको हम लोग चैरियट कहते हैं, 4 घोड़े खींच रहे थे और उसमें हमारे जो जीते हुए प्लेयर थे जिसमें श्याम थापा और भी थे, वो सब खड़े थे और हाथ में उनका एक शील्ड भी था और कप भी था जो उन्होंने जीता था। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसको लेके हम लोग फिर गोरखा मिलिट्री स्कूल में 2 फाइल में हम लोग रास्ते के दोनों तरफ से आए और देहरादून के लोग फूल बरसाते चले गए। क्या दिन था वो भी, मुझे को आज भी बहुत याद आता है। पर एक टाइम ऐसा आया दूसरे कारण से कि शायद किसी कारण से स्कूल में बच्चे कम होते चले गए, स्टूडेंट कम होते चले गए क्योंकि और भी स्कूल खुल गए। तो एक टाइम ऐसा आया जब स्कूल में जो अच्छे स्टूडेंट की कमी हो गया, उनके नंबर भी बहुत कम हो गए। तो हम लोग को बहुत खराब लगता था कि ऐसा क्यों हुआ। शायद इसलिए भी हुआ होगा कि हम लोग समय के साथ साथ अपने यहाँ पर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए जो बच्चों को कैरियर के लिए जरूरत था। जैसा साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन में जब जाता हूँ गोरखा मिलिट्री स्कूल में, अभी भी मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त भी आते हैं वहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं, बड़ा दुख होता है देख के कि 120, 130, 160, 170 बच्चे सिर्फ हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। स्कूल अपने जगह में, इतना खूबसूरत जगह में, तो हम लोग इस स्कूल को आगे कैसे ले जाए। तो हमारे में जो हम लोग एक्स स्टूडेंट हैं, जो एलुमनाई है, हम लोग दुनिया में हर कोने में हैं, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में भी हैं सब के सब। क्यों ना हम सब मिलके इस स्कूल को फिर दोबारा अपने पुराने लेवल से भी ऊपर ले जाए। मेरा ये अनुरोध है आप सबसे कि आप लोग सब आगे आए और आने के बाद ये हम लोग एक गोरखाली सुधार सभा के थ्रू ही हम लोग अगर इसको आगे ले जाए आने वाले टाइम में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं होगी और हमारे जिंदगी, हमारे जो जीवन एक सार्थक हो जाएगा कि हम लोग एक स्कूल को कुछ दे पाएंगे। छोटी सी बात है, आप लोग सब आए, हम लोग सब मिलके इस स्कूल को एक बहुत अच्छे मकाम तक ले जाए, उससे भी अच्छा ले जाए। और देहरादून तो क्या, हिंदुस्तान में एक के माना हुआ स्कूल दोबारा हो जाए।